افواج پاکستان کا آپریشن بنیان مرصوص دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ مسلح افواج نے بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو مؤثر جواب دیا۔ پاکستانی میزائلوں نے بھارت میں کھلبلی مچا دی، متعدد پوسٹیں مکمل تباہ کر دیں۔ پاک فوج کی جانب سے پٹھان کوٹ میں ایئر فیلڈ اور ادھمپور ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارت کی دھرمسل، ڈنا اور ٹیبل ٹاپ بالمقابل نیزا پیر سیکٹر مکمل طور پر تباہ کر دی۔ افواج پاکستان کا آپریشن بنیان مرصوص دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ بھارت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب، پاکستانی میزائلوں نے بھارت میں تباہی مچا دی، متعدد پوسٹیں مکمل تباہ۔ پاک فوج کی جانب سے پٹھان کوٹ میں ایئر فیلڈ اور ادھمپور ایئر بیس کو 3 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ بھارت کی دھرمسل، ڈنا اور ٹیبل ٹاپ بالمقابل نیزا پیر سیکٹر مکمل طور پر تباہ کر دی۔ بھارتی آرٹلری گن پوزیشن دہر نگیاری اور براہمو سٹوریج سائٹ نگروٹا بھی مکمل طور پر تباہ کر دی گئی۔ پاک فوج کے طیاروں نے میزائل فائر کر کے پاکستان پر میزائل فائر کرنے والے آدمپور ایئر فیلڈ کو بھی خاک کا ڈھیر بنا دیا۔ بھارت کی اخنور ایویشن بیس بھی تباہ کر دی۔ ایک اور حملے میں بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے جی ٹاپ اور سپلائی ڈپو اڑی ملیا میٹ کر دی۔ پاکستان کا بھارت کی بجلی تنصیبات پر بڑا سائبر حملہ 70% تنصیبات کو ناکارہ بنا دیا۔ JF-17 تھنڈر کے ہائپرسونک میزائلوں نے آدمپور میں بھارت کا S-400 سسٹم تباہ کر دیا، جبکہ راجوڑی میں پاکستان میں دہشت گردی کروانے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز تباہ کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے سہارنپور میں سرسا ایئر فیلڈ، بھٹنڈا ایئر فیلڈ، اڑی فیلڈ سپلائی ڈپو کی تباہی کی تصدیق کر دی۔ مقبوضہ کشمیر کے نوشہرہ میں پاکستان میں دہشت گردی کرانے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز اور بھمبر گلی میں فوج کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں برنالہ ایئر فیلڈ کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر رپتاں والی پوسٹ، ڈنا پوسٹ، خواجہ بھیک کمپلیکس اور رنگ کنٹویر بالمقابل سنک اور پتھیلی ٹاپ کی بھارتی پوسٹیں بھی مکمل طور پر تباہ کر دی گئیں۔ کراچی سے کشمیر تک پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھارت کو تاریخی شکست دینے پر پوری قوم کا جذبات دیدنی، شہر شہر جشن، نوام پرچم تھامے سڑکوں پر نکل آئے۔ پاک فوج سے بھرپور یکجہتی کا اظہار، کندکوٹ میں ریلی، عوام کا پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم۔ کشمور، جھنگ، رینالہ خور، چنیوٹ اور قصور میں بھی ریلیاں۔ مظفر آباد میں جماعت اسلامی کی زیر اہتمام مظاہرہ، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے۔ بہاڑی میں بھی لوگوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے، سکھ برادری کی بھی آپریشن بنیان مرصوص میں تاریخی کامیابی پر پاک فوج کو مبارکباد۔ تو آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی پر ملک بھر میں یوم تشکر، گلی گلی نگر نگر میں نعرہ تکبیر کی گونج۔ پوری قوم نے اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ اپنی فوج کا بھرپور ساتھ دیا۔ فتح نے قوم کا حوصلہ بلند کیا اور دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ تاریخی فتح پر عوام خوشی سے نہال ہے۔ تو آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی پر ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ گلی گلی نگر نگر میں نعرہ تکبیر کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ پوری قوم نے اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ اپنی فوج کا بھرپور ساتھ دیا اور اس فتح نے قوم کا حوصلہ بلند کیا اور دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے۔ تاریخی فتح پر عوام خوشی سے نہال دکھائی دے رہی ہے۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور دیگر شہروں سے ہمارے رپورٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ لوگ کس طرح سے اظہار تشکر کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کا رخ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے شہر اقتدار سے فوزیہ علی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فوزیہ، بتائے گا یہاں پر کیا سما دیکھ رہی ہیں، کیا مناظر دیکھ رہی ہیں، خاص طور پر کل شام سے ہی جب یہ خبر آئی کہ سیز فائر ہو چکا ہے اور پاکستان نے کل بھرپور جواب دیا تھا بھارتی جارحیت کا، آج کیا سما ہے؟ حالانکہ آج سنڈے ہے، چھٹی بھی لوگ انجوائے کر رہے ہیں، ساتھ اس دن کو بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ جو بالکل بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب آج اسلام آباد میں بھی یوم تشکر جو وہ بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ کل جب دیکھا کہ سیز فائر کا اعلان ہوا تو اس سے قبل ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ اسلام آباد کی جو فضائیں ہیں وہاں پر نعرہ تکبیر اور پاک افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو نعرے ہیں وہ بلند ہو رہے تھے اور شہریوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سڑکوں پر نکلی ہوئی تھی اور اس طرح کا سما تھا جیسے جشن آزادی کا سما ہوتا ہے، کیونکہ ہر سو سبز ہلالی پرچموں
बहार थी और लोग जो है वो जगह जगह जो है वो पाक अफवाज के लिए इजहार यकजहती के लिए घरों से बाहर निकले हुए थे। आज भी समा कुछ ऐसा ही है, लोग अपने जो बुज़दिल दुश्मन है उसको जो मुंह तोड़ जवाब दिया पाक अफवाज ने, पाक फ़ज़ाइया ने, और जो कारकर्दगी रही पाक अफवाज की उस पर खराज तहसीन पेश करने के लिए और उसके साथ इजहार यकजहती करने के लिए आज भी हम देख रहे हैं कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो घरों से बाहर निकली हुई है। आज भी हमें जगह जगह सब सलाली परचमों की बहार नजर आ रही है और हम जिस किसी से भी बात कर रहे हैं उसका जोर जज्बा जो है वो अपनी पाक अफवाज के साथ है। उनका यही कहना है कि जो पाक अफवाज की जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया, चाहे तैयारे हों, चाहे उनकी चौकियां हों, चाहे जो उनकी तनसीबात हो, जिस तरह तौर पर जोश जज्बा जो है वो दीदी है। फौजिया साथ ही रहिएगा, कराची का रुख करेंगे। सालिक, आप बताइएगा कराची के लोग किस तरह से जश्न मना रहे हैं और पाक फौज की किस तरह से वो उनकी जो बहादुरी है उसके ऊपर नारे भी लगा रहे हैं, मिठाइयाँ भी तकसीम कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ जो पाकिस्तान की आर्मी ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था भारत पर, उसकी कामयाबी का जश्न पूरी रात कराची के शहरी बनाते रहे। कराची की सड़कों पर हमने गुज़श्ता रात देखा कि शहरी परचमों को लेकर लिखने हुए थे। कराची के नौजवानों ने पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर जो है वो उन्होंने यहाँ पर रैलियाँ निकाली थी जिस पर पाक फौज के जो जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जबकि इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की जो अहम जो इंस्टॉलेशन है वहाँ पर जाकर उन्होंने वहाँ की फौजियों से उन्होंने मिले हैं, उनको फूलों के हार पहनाए हैं, मिठाइयाँ खिलाई हैं उनको। लेकिन ये पूरे दिन जारी रहा है। आज भी यौम तशक्कुर भरपूर जोश जज्बे के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो है आज वो रैलियाँ निकाली जाएंगी, जबकि गुज़श्ता रात में जो थके हुए शहरी है वो दोबारा निकले हैं पाकिस्तान के झंडे लेकर दोबारा इज़हार तशक्कुर के लिए, आज यौम तशक्कुर मनाने के लिए कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को धूल चटाई है, पाकिस्तान जो अज़ली दुश्मन है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, और पाकिस्तान पर जिस तरीके उसने जारियत के जिसका जवाब पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से दिया। पाकिस्तान की अफवाज और एयरफोर्स ने जिस तरीके से भारत के अज़ाइम को मलिया मेट किया है, उसका जश्न भरपूर तरीके से कराची के नौजवानों ने और कराची के शहरियों ने मनाया। उनका यही कहना है कि पाक फौज ने उनका सर फख्र से बुलंद किया है। भारत ने जो जारियत दिखाई, दुनिया भर को बेवकूफ़ बनाता रहा, अपनी अवाम को बेवकूफ़ बनाता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ 3 घंटे के अंदर उनका जो गुरूर है वो खाक पे मिलाया। जिसके बाद पाकिस्तान के जो दबाव में आने के बाद उन्होंने जब सीज़ फायर किया तो उसको उन्होंने कहा कि उनकी सरासर नाकामी ही, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने तमाम जो दावे और ढंडोरे पीटा, लेकिन पाकिस्तान की फौज के भरपूर जवाब ने उनको खामोश करवा दिया। ठीक है, लाहौर का रुख कर लेते हैं। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, लाहौरियों ने ड्रिल्स की आवाज़ें भी सुनी, फिर ड्रोन्स भी देखे, उस वक्त भी जो जज्बा था वो काबिल दीद था, और अब आज जब यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, आज क्या समा है? जी बिल्कुल, लाहौरियों का तो जश्न फिर अपना अंदाज होता है उनका, और कल से हम जो देख रहे हैं कि जिस वक्त से सीज़ फायर का ऐलान हुआ जो कि पाकिस्तान की जीत का ऐलान था, उसके साथ ही लाहौर शहर में एक जश्न शुरू हो गया था और हर तरफ यही एक आवाज़ थी कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और आज भी छुट्टी है, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा दर्जा हरारत है लाहौर का। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग हमें सड़कों पर नज़र आ रहे हैं और यहाँ नारेबाजी करते हुए भी नज़र आ रही है। नौजवान देखे जो यहाँ पर इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं और ये सड़क पर खड़े हैं इस वक्त, और इन कोई मौका नहीं जाने दे रहा है कि पाकिस्तानी फौज से और पाकिस्तान से अपना इजहार यकजहती करे। और हुकूमत की जानिब से यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया गया है, वो बिल्कुल हक पे जानब है, क्योंकि इसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कि अपने से 8 गुना 10 गुना बड़े दुश्मन के साथ जिस तरह निमटा गया है। ठीक है, लाहौर ये जो है वो बड़ा जश्न मना रहे हैं। हम रुख करेंगे कोयटा का। आयशा, आप बताइएगा, भारत जिसका 3 दिन का गुरूर था 3 घंटे में मलिया मेट हो गया, तो जो कोयटा के लोग हैं वो किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह कोयटा में भी आज यौम तशक्कुर जो है वो बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की बेहतरीन कामयाबी के बाद कोयटा के शहरी जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं और हर तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के जो है वो हमें नारे सुनाई दे रहे हैं। और शहरियों ने जो है वो पाकिस्तान के झंडे भी थाम रखे हैं। और यौम तशक्कुर के एजाज़ में जो है वो कोयटा के मुख्तलिफ मकामात पर आज रैलियाँ भी निकाली जाएंगी। और आज सुबह जो है वो कोयटा की मुख्तलिफ मसाजिद में जो है वो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के जो है वो अल्लाह का शुक्र भी अदा किया गया और पाक फौज और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। और जो है वो शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान की जो फौज है उन्होंने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान की तरफ जो भी मैली आंख रखेगा या डालेगा तो पाक फौज जो है वो उससे बेहतरीन जवाब देना जानती है। और अगर भारत ने अपनी जाहिरियत जो है वो बरकरार रखी तो पाकिस्तानी फौज जो है वो उन्हें एक मरतबा फिर करारा जवाब जो है वो दे देगी। और कोयटा की शहरी जो है वो
पुरज़म है कि हम जो है वो पाक फौज के साथ है। अगर कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम जो है वो पाक फौज और पाकिस्तान की शाना बिशाना जो है वो खड़े रहेंगे। पाक फौज के शाना बिशाना खड़े रहेंगे। आमिर, आपकी जानिब आते हैं, पेशावर से आप हमारे साथ मौजूद हैं और मैं आपके पीछे देख रहा हूँ लोग गालिबन रैली निकाल रहे हैं। बताइएगा क्या जज्बात हैं यहाँ पर लोगों के? देखिए, जब से ही जंग का आगाज़ हुआ था, पठान कौम जो है उनका खून जोश मारा था और उनकी ये एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से वो पाक फौज के शाना बशाना खड़े होकर लड़ाई कर सके। लेकिन वो लड़ाई तो नहीं कर सके, लेकिन जैसे ही सीज़ फायर का ऐलान हुआ उसी वक्त से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जवान, बूढ़े, बच्चे सब जो हैं वो रोडों पर निकले हैं। सैकड़ों की तादाद में जो है वो यहाँ पर हम अफराद को देख रहे हैं। रैलियाँ निकाली जा रही हैं और हर एक के हाथ में पाकिस्तान के झंडे हैं, बैनर्स उठाए हुए हैं जिस पर पाक फौज जिंदाबाद और पाक फौज के जो जर्नल हैं, ख़ास तौर पर जनरल आसिम मुनीर के तस्वीरें जो हैं वो उन्होंने उठाई हुई हैं और इज़हार तशक्कुर कर रहे हैं। और साथ साथ इस बात से वो इंतहाई ज़्यादा खुश हैं कि जाहिरियत का जवाब जो है वो इंतहाई ऐसे अंदाज में दिया गया कि वो आइंदा कई सौ सालों तक दोबारा ऐसा सोचने की हिम्मत भी नहीं करेगा। पाकिस्तान और ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर अगर पठान कौम की बात करूँ तो इंतहाई पुरजोश है और सिर्फ पेशावर में नहीं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में मैं देख रहा हूँ, वहाँ से हमें इतलात मौसूल हो रही है कि बड़े शहरों में जो है वो पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती और इज़हार तशक्कुर के लिए रैलियाँ निकाली जा रही हैं और हर एक में पाकिस्तान के झंडे जो हैं और मुख्तलिफ शहरों के वो जो है मोटरसाइकिल रैलियाँ, कार रैलीज जो हैं वो निकाली जा रही हैं। पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है, इज़हार तशक्कुर जो है वो किया जा रहा है। अल्लाह ताला के इस हवाले से शुक्र भी अदा किया जा रहा है कि ऐसा हमें मुल्क दिया है जिसकी इतनी ताकत है कि कोई भी उसकी तरफ मैली आंख से देख नहीं सकता। यही सूरत हाल, यही जज्बात हमें पूरे खैबर पख्तूनख्वा में देखने को मिल रहे हैं। ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे शहरों में और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है और इज़हार यकजहती भी की जा रही है। पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। इस्लामाबाद से फौजिया अली, कराची से सालिक शाह, जबकि लाहौर से जाहिद आबिद और कोयटा से आयशा इमरान, पेशावर से आमिर जमील हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। सियालकोट बॉर्डर पर शहरियों की बड़ी तादाद पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने पहुंच गई है। अफसरान और जवानों से भरपूर यकजहती का इजहार किया गया है। शहरियों ने टैंकों के दस्तों पर फूल निछावर किए हैं। पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। शहरियों का कहना है जवानों की बहादुरी पूरी कौम के लिए बाइस फख्र है। हम पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। पाक फौज के जवानों से भारत वाज़ेह शिकस्त के बाद सीज़ फायर की दरख्वास्त पर मजबूर हो गया है।